Good day, my friends. आज के vocabulary words from the editorial of the Hindu newspaper. The title of the editorial is Safety First. So let's begin with the vocabulary words. The first word is aviation. Aviation means flying or operating an aircraft. एक aeroplane को उड़ाना और उससे related जितना भी काम रहता है, that all is called aviation, right? Second word is grim. Grim is very serious. बहुत ही ज़्यादा सीरियस या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन या सिचुएशन विच इज़ वेरी ग्रेव, वेरी सीरियस. रेकेज इज रिमेन्स ऑफ समथिंग विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड या डैमेज. कोई भी चीज़ जो बहुत बैडली डैमेज हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, उसके जितना भी बचा खुचा रहता है, जैसे कि एक रेकेज ऑफ अ एयरक्राफ्ट, wreckage of a car. He was dragged out from the wreckage of his accidental car, right? So all that is wreckage. The fourth is treacherous. Please notice the pronunciation of these words also along with the meanings as well as, क्योंकि स्पीकिंग में और आपके जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं उनमें प्लस डे टू डे उस यूज़ में और इन एडिटोरियल्स को समझने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेकरस. ट्रेकरस मीन्स अनप्रिडिक्टेबल डेंजर या डिसलॉयल. कोई भी ऐसी डेंजर, कोई भी ऐसी परेशानी जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसके बारे में हम जानते नहीं हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेकरस. लर्क. लर्क इज़ रिमेन हिडन टू वेट फॉर समवन. किसी के लिए घात लगा के बैठना या फिर छुप कर बैठना कि जैसे ही कोई आएगा हम अटैक करेंगे या फिर हम उससे ये बात करेंगे, दैट इज़ लर्किंग. सो लर्क इज़ रिमेन हिडन. द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिकल. Fickle means changing loyalties frequently. Fickle is basically it is used for fickle-minded people जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ दोनों अपने पक्ष चेंज करते रहते हैं. All the politicians who keep on changing parties are also fickle-minded, as well as those people who still vote them even after the change of their loyalties are more fickle-minded. Fine. Maneuvers. Maneuvers is an action requiring skill and care. कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत स्किल चाहिए, बहुत केयर चाहिए. For example, to fly an aeroplane or a jet. To learn those skills, you have to acquire those skills, and all those skills, all those actions are maneuvers, right? The next is contentment. Contentment means satisfaction. To his contentment, everything was done on time. And he was satisfied because everything was done on time, right? The next word is logistics. Logistics basically किसी ट्रांसपोर्टिंग गुड्स को भी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं. देयर इज़ वन मोर मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एन इवेंट. किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, उसको प्लान आउट करना अच्छे से, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिस्टिक्स. टेरेन. टेरेन इज़ लैंड. जितना भी लैंड का एरिया है दैट इज़ कॉल्ड अ टेरेन. फॉर एग्जाम्पल, बस made many jerks while moving because of the rough terrain, because of the land that was very rough, right? Next is obligation. Obligation is responsibility. All the citizens have an obligation towards the country so that they should vote properly, they should choose the right candidates, and the right people should reach in power. Crucial. Crucial is very important. Pivotal. कोई भी चीज़ बहुत ही important होना, significant होना is a crucial matter, a crucial thing. Summit. Summit is a meeting, conference, that is also called a summit. A mountain top is also called the summit, right? The summit of Commonwealth Games or the summit of the organizers of the Commonwealth Games. The Everest summit has been reached by so many Indians. The next is paving the way for. Paving the way for means making something easy to happen. किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से करने के लिए जो efforts किए जाएं, that is called paving the way open.
The next is well-honed skills. That is, well-honed means well-developed or well-sharpened skills. Need to scale. Need to scale means need to conduct something is the need to scale. This is a phrase. Now there are two abbreviations also in the editorial that we are going to do today, and they are STOL, that is short takeoff and landing flights. VFR is visual flight rules. These both are abbreviations. The editorial article that we are going to study today or read today is Safety First. This is about the Nepal's aircraft that crashed and 4 Indians also died in it. 2 were children out of them. Let's begin with today's editorial of the Hindu newspaper. अभी रिसेंटली जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ नेपाल एयरलाइंस का, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. सेफ्टी फर्स्ट. नेपाल शुड नॉट सैक्रिफाइस एविएशन सेफ्टी फॉर द सेक ऑफ कमर्शियल टूरिज्म. अभी जो हमने वर्ड मीनिंग्स किए, दे वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू नाउ. एविएशन इज़ रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट, उड़ाने से, फ्लाइंग से या ऑपरेटिंग से रिलेटेड. तो नेपाल को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए अपनी एविएशन सेफ्टी को, यानी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कमर्शियल टूरिज़्म. ऐसा ना हो कि कमर्शियल टूरिज़्म के चक्कर में अपनी सेफ्टी, उनकी गाइडलाइंस प्रॉपरली नहीं पूरी हों. द ग्रिम इमेजेस. ग्रिम मीन्स वेरी सीरियस, ग्लूमी. इमेजेस ऑफ द रेकेज मतलब रिमेन्स, जो भी उनके टूटे हुए टुकड़े रह गए हैं. टारा एयर डे Havilland DHC 6300, this is the name of the aircraft, Twin Otter aircraft in Nepal, have once again highlighted the complexities of ensuring aviation safety. इस एरोप्लेन के, जिसका नाम ये है, उसकी एयरक्राफ्ट की क्रैश से दोबारा से हाईलाइट हो गई हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि मुश्किलें जो कि इंश्योर करती हैं एविएशन सेफ्टी को, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है इस वर्ल्ड का. एंड इन रेगुलेटिंग द माउंटेन नेशंस शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइट्स. माउंटेन नेशंस शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज STOL फ्लाइट्स दैट आर अ टूरिस्ट ड्रॉ, और इनकी सेफ्टी को रेगुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. द प्लेन विद 22 पैसेंजर्स. दिस इज़ अबाउट क्या हुआ था उस प्लेन में जो क्रैश हुआ. द प्लेन विद 22 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग एन इंडियन फैमिली वॉज ऑन एन एयर ट्रैक along the scenic yet aerially treacherous पोखरा टू जॉमसन रूट. वो प्लेन जिसमें 22 पैसेंजर्स थे, जिसमें एक इंडियन फैमिली भी थी, वो एक एयर ट्रैक पे जा रहे थे अलोंग, जहाँ पे कि सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है और एयरली ट्रैकरस है, मतलब कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल डेंजर्स हैं इस रूट के ऊपर, जो कि पोखरा टू जॉमसन रन करता है. ऑन संडे when it lost radar contact is the contact with the ground service, वो लूज़ कर दिया उन्होंने और वो प्लेन खो गया at around 13,000 feet. STOL operations call for well-honed piloting skills. Now, STOL operations हमेशा क्या होना चाहिए उसमें? बहुत अच्छे से, well-honed means बहुत अच्छे से सीखे हुए, skillful piloting skills and a 3D terrain maps of the flight path show. और उनके पास हमेशा एक 3D terrain map होना चाहिए, 3 डायमेंशनल, जिसमें दिखे प्रॉपरली कि फ़्लाइट का पाथ क्या है. डेंजर लर्क्स इन एवरी कॉर्नर. डेंजर छुपी बैठी है हर कॉर्नर में, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ. इन द फॉर्म ऑफ जैक्ड पीक्स. और किस तरह की डेंजर्स हैं? जैक्ड पीक्स, कहीं कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पीक्स हैं. पीक्स मतलब माउंटेन्स. नैरो पासेस, और पासेस इतने ज़्यादा नैरो हैं कि किसी भी माउंटेन से टकरा सकता है एरोप्लेन. एंड फिकल वेदर. फिकल वेदर मीन्स डिसलॉयल वेदर. वेदर किसी भी सेकेंड, किसी भी मिनट चेंज हो सकता है फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद भी. द स्मॉल अनप्रेशराइज क्राफ्ट used in this sector operate at a ceiling of 13,000 feet and are airborne for a short duration.
ये इस तरह के जो अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं इस सेक्टर में जो चल रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेट एट अ सीलिंग ऑफ 13,000 फीट। ये सिर्फ 13,000 फीट तक ही उड़ सकते हैं एंड आर एयरबॉर्न फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इन्हें बनाया गया है। ऑक्सीजन सप्लाईज आर नीडेड फॉर ऑल पैसेंजर्स इफ फ्लाइट्स एक्सीड ओवर 30 मिनट्स अबव 13,000 फीट, और 13,000 फीट से ऊपर अगर होते हैं या 30 मिनट्स के ज़्यादा फ्लाइट हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा पैसेंजर्स के लिए चाहिए रहती है, होती है। फ्लाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्यूवर्स ऑफ 90 डिग्री टर्न्स इन वैलीज। फ्लाइट्स को इस टाइम पे मैन्यूवर्स मतलब एक्शंस जिनमें कि बहुत स्किलफुल चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का भी टर्न कभी कभी लेना पड़ता है आपके एरोप्लेन को। इन वैलीज दैट हैव एट टाइम्स जस्ट विंग लेंथ क्लियरेंस, और वैलीज इतनी पास होती हैं कि सिर्फ विंग की लेंथ जितना ही जगह मिलती है, क्लियरेंस मिलता है उस एरोप्लेन को पास करने के लिए। एंड एज इन एनी कॉम्पिटिटिव टूरिज्म मार्केट, किसी भी कॉम्पिटिटिव टूरिज्म मार्केट के लिए क्राउडेड विद वेरियस एसटीओएल ऑपरेटर्स, जहाँ पे कि बहुत सारे एसटीओएल ऑपरेटर्स काम करते हैं, देयर आर मेनी प्रेशर्स दैट कैन टेल ऑन द क्रू। टेल ऑन द क्रू मीन्स बहुत सारे प्रेशर्स क्रू के ऊपर वर्क करते हैं उस टाइम पे जब वो चला रहा होता है इस एरोप्लेन को। क्या क्या प्रेशर्स रहते हैं? कमर्शियल स्ट्रेस पॉइंट्स सच एज नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स। कमर्शियल स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं उनको क्योंकि वो फ्यूल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, जितना भी उनके पास ऑयल है उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड इंश्योरिंग पैसेंजर्स contentment by pushing the envelope of crucial visual flight rules, और वो पैसेंजर्स को कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन भी देना चाहते हैं। किस तरह से? बाय क्रूशियल विजुअल फ्लाइट रूल्स को ऑपरेट करते हुए उनको ब्रेक भी कर सकते हैं कभी कभी। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करें जितने भी लोग ऑन बोर्ड हों उनके एरोप्लेन पे, तो इसलिए वो कभी कभी पुशिंग द एनवलप मीन्स कि वो उन रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। नॉट फॉलोइंग VFR these flight rules is cited as the main cause of accidents in Nepal's STOL operations। कि VFR ने जो भी रूल सेट किए हैं, जो भी नॉर्म्स रखे हैं, उसको वॉयलेट करना ही एक मेजर रीज़न रहता है इस नेपाल के STOL ऑपरेशंस में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनका। So is Nepal pushing the boundaries in air safety? Means air safety में जितने भी boundaries, जितने भी guidelines हैं, क्या नेपाल उनको push कर रहा है? क्या उनको properly follow नहीं कर रहा है? Data put out on the Civil Aviation Authority of Nepal show domestic air travel having risen by 15%. वो data जो Civil Aviation Authority ने पुट किया है नेपाल की, वो शो किया है, वो दिखाता है कि जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है 15% बढ़ गया है इन 2018, दो रजिस्टरिंग अ डिप इन 1920 और 2019-20 में वो कम हुआ। डिप मीन्स कम होना। लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फॉलोइंग द ग्लोबल कोविड-19 पैंडमिक। और क्यों हुआ ये कम? बिकॉज ग्लोबल पैंडमिक था 2019 में और उसकी वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए वो डिप हुआ। बट इंटरेस्टिंगली country data over the past 10 years have shown a sharp drop in the accident rate in general। और अभी presently country के data ने ये show किया कि past 10 years में बहुत कम drop हुआ, accident rates बहुत low हो गए, नहीं हुए, and only blip being a rise in helicopter and incidents। और इसका exception क्या है? blip is an exception। exception ये था कि राइज हुआ हेलीकॉप्टर्स में, रिलीफ एंड रेस्क्यू में और टूरिज्म में, इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा हुए। इन द सेम टाइम फ्रेम द एसटीओएल सेक्टर हैज़ सीन अ हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट्स देन ट्रंक रूट एयर ऑपरेशंस। और इसी सेम टाइम में ट्रंक रूट एयर ऑपरेशंस से कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट्स फेस किए एसटीओएल सेक्टर ने। ऑफ द 19 एक्सीडेंट्स 16 वर एसटीओएल एयरक्राफ्ट्स, और 19 में एक्सीडेंट्स में से 16 एसटीओएल एयरक्राफ्ट थे।
एक्सीडेंट एनालिसिस हैज़ शोन कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। एक्सीडेंट एनालिसिस ने ये शो किया कि कंट्रोल्ड फ्लाइट टेरेन में कैसे, और रनवे एक्सकर्शंस एंड लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट एज द लीडिंग कॉजेज। तो एक्सीडेंट को अगर हम एनालाइज करें, इन सारे 19 एक्सीडेंट्स में ये एनालाइज किया गया कि इनके रीजंस क्या हैं, फ्लाइट इनटू टेरेन, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, और रनवे एक्सकर्शंस, और या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट। तो यही रीजंस हैं, कॉजेज हैं फ्लाइट के एक्सीडेंट्स के। अ मोर रियलिस्टिक चेक lies in the Universal Safety Oversight Audit Program of the International Civil Aviation Organization। एक और भी ज़्यादा रियलिस्टिक चेक, एक असली चेक कहाँ पे हो सकता है? यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम। किसका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि मॉनिटर करते हैं सेफ्टी ओवरसाइट ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ओवरसाइट by all 193 member states, और 193 member states हैं इस organization के, that is the International Civil Aviation Organization, as of June 2020, in which Nepal's scores it last participated in the program in 2017। 2017 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और उनके स्कोर्स ड्रॉप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद से ही हमेशा से उनके स्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत नीचे रहे हैं। इन एन एरा ऑफ इम्प्रूविंग ग्लोबल एयर सेफ्टी, इस टाइम में जबकि ग्लोबल एयर सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, नेपाल नीड्स टू स्केल अ क्रूशियल समिट। नेपाल को एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट समिट करना चाहिए। समिट इज बेसिकली meeting, conference, by working on pending legislation that unbundles its civil aviation body। और pending जितने भी legislation मतलब law cases जो कि इसकी civil aviation body को regulate करते हैं into a regulator and service provider, paving the way for a full-fledged safety system। और इस तरह से रास्ता बनेगा किस चीज़ का? फुल फ्लेज सेफ्टी सिस्टम का, जो कि बहुत बढ़िया ढंग से सेफ्टी इंश्योर करे, एंड इन टर्न इनेबलिंग सेफर एसटीयूएल ऑपरेशंस। और इसकी वजह से सेफर एसटीयूएल ऑपरेशंस इनेबल होंगे और उनकी फ़्लाइट्स बहुत सक्सेसफुल रहेंगी और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। थैंक्स, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मीट यू टुमारो इन अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल।